Welcome to lecture series on Unit 1, Balancing of Rotating and Reciprocating Masses. Today we are going to discuss the problem from September 2023 question paper. Problem is in this way. Question 1b. A rotating shaft carries 4 disturbing masses of magnitude 20 kg, 16 kg, 18 kg and 14 kg at radii 60 mm, 70 mm, 80 mm and 70 mm respectively. So there are 4 masses, disturbing masses, whose magnitude is 20 kg, 16 kg, 18 kg and 14 kg, and their radii of rotations are 60 mm, 70 mm, 80 mm and 70 mm respectively. The masses M2, M3 and M4 revolve in a plane. The distances between the plane of rotations are given. Masses M2, M3, M4 revolve in a planes 80 mm, 160 mm and 280 mm from the plane of mass M1. So from plane of mass M1, the plane of mass M2 is at a distance of 80, plane of mass M3 is at 160 mm, and plane of mass M4 is at a distance of 280 mm from the plane of mass M1. And the located at 60 degree, 135 degree and 270 degree respectively, measured in and counterclockwise direction from M1. M1 मास का पोजीशन, एंगुलर पोजीशन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लेना है हमें, और वहाँ से M2 मास का एंगल है 60 डिग्री, M3 मास का है 135 डिग्री एंड M4 मास का एंगल है 270 degree, measured in an anti-clockwise direction from mass M1, position of mass M1. So if the shaft is dynamically balanced, by two masses, दो masses से अगर ये shaft का dynamic balancing किया है, both located at 50 mm radius of rotation of these two masses is 50 mm and located midway between M1 and M2. पहला जो balancing mass है उसका position है in between the plane of mass M1 and mass M2. एंड दूसरा बैलेंसिंग मास जो है दैट इज मिडवे बिटवीन M3 एंड M4. सो M3 और M4 के बीच में ये दूसरा बैलेंसिंग मास का प्लेन है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द बैलेंसिंग मासेस. तो बैलेंसिंग मासेस का मैग्नीट्यूड केजी में फाइंड आउट करना है और उसका एंगुलर पोजीशन दैट इज थीटा, दोनों का एंगुलर पोजीशन कितना है, मतलब एंगल थीटा कितना है, वो बैलेंसिंग मासेस का एंगल थीटा में फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू राइट द गिवन डेटा फर्स्ट. M1 is 20 kg, M2 is 16 kg, M3 is 18 kg and M4 is 14 kg. Radii of rotations are R1 is equal to 60 mm. So in meter it is 0.06 meter. R2 is equal to 70 mm. So in meter it is 0.07 meter. R3 is equal to 80 mm. So in meter it is 0.08 meter. R4 is 70 mm and it is equal to 0.07 meter. So radii of rotations R1, R2, R3, R4 we have to convert from mm to meter in the calculation. Next is angle theta 1. The angular position of mass M1 will consider as a horizontal, your reference position. So angular position of mass M1 is horizontal. So angle theta 1 is equal to 0. Theta 1 is equal to 0. Theta 2 is equal to 60 degree. Theta 2 is the angle made by the second mass and it is at 60 degree. So theta 2 is equal to 60 degree. Theta 3 angle made by mass M3 with respect to this mass M1. Mass M1 से mass M3 का angle है theta 3 and that is 135 degree. And theta 4 is the angle made by the mass M4 from the mass M1. Mass M1 से ये angle है theta 4, that is 270 degree. Then radii of rotation of the two balancing masses. Let this balancing mass L and M. These are the planes of rotation of these two balancing masses. And RL is equal to RM. So RL and RM are the radii of rotation of the two balancing masses, that is L and M. And their radii of rotation is given in the problem 50 mm. So 50 mm means 0.05 meter. 0.05 meter. So RL is equal to RM and that is equal to 0.05 meter. So in this problem we have to find out ML, mass of balancing mass L. So ML in kg. Then we have to find out mass of second balancing mass, that is MM in kg. Also we have to find out their angular positions, that is theta L and theta M. So theta L is the angular position of the mass L and theta M is the angular position of the mass M from the mass M1. Here mass position of the mass M1 is horizontal, that is the reference position. So problem is in this way. Now very first step to solve this problem is to draw the position of planes. These 4 masses, they are rotating in a different plane. So their positions we have to locate. So that diagram is called as a position of planes diagram. Position of plane diagram. तो ये डायग्राम के लिए स्केल हमें यूज नहीं करना है, ये कन्वीनियंटली ये ड्रॉ करना है डायग्राम, मेजरमेंट्स नहीं करना है. यहाँ सिर्फ डिस्टेंसेस, प्लेन ऑफ रोटेशन में डिस्टेंसेस कितने हैं वो हमें मार्क करना है. So first diagram is a position of planes. So this is a reference line, horizontal reference line. The first mass is M1 and its radii of rotation is R1. So first plane is A plane. There are 4 planes.
If A is the plane in which mass m1 is rotating, then B is the plane in which mass m2 is rotating, C is the plane in which mass m3 is rotating, and D is the plane in which mass m4 is rotating. So mark these positions of these masses as m1, m2, m3, and m4. So first mass is m1, its radius of rotation is r1. Now distances are given to us. The distances are given to us. So it is given in the problem that we can see the masses m2, m3, and m4 revolve in a planes 80 mm, 160 mm and 280 mm from the plane of mass m1. ये जो m2, m3, m4 masses है इस प्लेन में रिवॉल्व हो रहे हैं जिस प्लेन का डिस्टेंस m1 से 80 mm, 160 mm एंड 280 mm है. तो यहाँ पे हमें ये देखना है यहाँ प्लेन ऑफ मास m1 से यहाँ से 80 mm पे मास m2 का प्लेन है. So this is at a distance of 80 mm from the plane of mass m1, the second mass that is m2 is placed. This is a plane of rotation of this mass m2 and its radius is r2 and its distance from plane of mass m1 is 80 mm. Then plane of mass m3 is at a distance of 160 mm from the plane of mass m1. मास m1 के प्लेन से प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ मास m3 ये जो डिस्टेंस है ये 160 mm दिया है. So we have to mark this mass m3 at a distance of 160 mm from the plane A. तो m3 mass उसका रेडियस है r3. Then last mass is m4 mass. So m4 mass is at a distance of 280 mm from the m1 mass, plane of m1 mass. तो m4 mass का plane of rotation it is at a distance of 280 mm from the plane of mass m1. So m4 mass is at a radius r4 at a radius r4. So m1, m2, m3, m4 their distances from plane of mass m1 are 80, 160 and 280 mm. This is given in the problem. So these four planes we have marked, and it is said that the balancing masses, that is balancing masses ml and mm, these are the two balancing masses which are shown by dotted line. Their balancing masses का जो plane है पहला मास ml है तो ml का प्लेन जो है वो m1 और m2 प्लेन के बीच में है. तो ये डिस्टेंस 80 mm है. तो यहाँ ये m1 to m2 प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ m1 एंड m2, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ रोटेशन m1 एंड m2 इज 80 mm. उसके मिड में है ये प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ मास ml का प्लेन. तो ये इसका मिडवे है, मतलब यहाँ से 40 m1 से 40 mm और m2 से भी 40 mm मिडवे है. तो ml इज द फर्स्ट बैलेंसिंग मास एंड इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज rl and L is the plane in which this ml mass is rotating. So L plane is in between, it is located midway between plane A and plane B. Similarly, plane M is the plane of rotation of mass mm and it is in between M3 and M4. M3 और M4 के बीच में ये plane of rotation of mass mm है. तो यहाँ पे हमें देखना होगा M1 से M3 प्लेन का डिस्टेंस है 160 mm. M1 से M4 प्लेन का डिस्टेंस है 280 mm. So 280 minus 160. So this distance is 120. This is 120 distance, 120 mm. तो उसके मिड में ये प्लेन मार्क करना है. तो यहाँ से ये 60 mm है और यहाँ से ये 60 mm. So M plane is located midway between plane C and plane D. उसके मिडवे है. इसी तरह से हमें स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है. ये स्केल से ड्रॉ नहीं करना है डायग्राम. ये समझने के लिए हमें कैलकुलेशन के लिए डिस्टेंसेस हमें समझ में आने के लिए डायग्राम है. तो स्केल से नहीं ड्रॉ करना है, स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है और अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस हमें दिखाना है और वो कैलकुलेशन में हमें डिस्टेंसेस लेना है. नाउ नेक्स्ट डायग्राम इज एंगुलर पोजिशन ऑफ दिस फोर मासेस, एंगुलर पोजिशन ऑफ द मासेस डायग्राम. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन O कंसिडर किया. O इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. यहाँ हमने पोजीशन ऑफ मास m1 इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इट इज रेफरेंस पोजीशन. इसी पोजीशन से बाकी एंगल्स हमें मेजर करने हैं. तो m1 का पोजीशन हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर दिया. m1 इज एट अ रेडियस r1. तो ये एंगल θ1 इज इक्वल टू 0 हो गया. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मास m1 इज एक्टिंग along the mass m1 and it is in a radially outward direction. Centrifugal forces हमेशा along the plane और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये सेंटर ओ से अवे फ्रॉम डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो Fc1 इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m1. नाउ सेकंड मास इज इंक्लाइंड एट एन एंगल θ2 दैट इज 60 डिग्री. तो यहाँ से ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल मेजर करना है और ये लाइन ड्रॉ करना है. सो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास m2 व्हिच इज एट अ 60 डिग्री फ्रॉम द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास m1. मास m1 का हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमने कंसीडर कर दिया है. तो m2 का पोजीशन है 60 डिग्री फ्रॉम द m1 पोजीशन. Similarly, M3 mass is at 135 degree from this position of mass M1. M1 से ये 135 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे एंगुलर पोजीशन ऑफ मास M3 हमें मार्क करना है.
Similarly, angular position of mass m4 is 270 degree. It is given. These angles are given, angular positions are given in the problem. So यहाँ से 270 डिग्री एंगल मेजर करके यहाँ पे मास 4 का हमें पोजिशंस मार्क करना है. सो थीटा 4 इज इक्वल टू 270 डिग्री, राइट. थीटा 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो दिस इज शॉर्ट एंगुलर पोजिशन ऑफ द मास m1, m2, m3 एंड m4. तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ये रहेंगे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास m1 इज Fc1 दैट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास m2 इज Fc2 and it is radially outward. Centrifugal force on mass m3 is Fc3 and it is radially outward direction. Centrifugal force on mass m4 is Fc4 and it is acting in the radially outward direction. तो यहाँ पे centrifugal force multiplied by the distance, force into distance is a couple. couple अगर पॉजिटिव है तो फोर्स के डायरेक्शन में उसको मार्क करना है. फोर्स का डायरेक्शन जैसा है रेडियली आउटवर्ड, वैसे ही पॉजिटिव अगर कपल का पॉजिटिव वैल्यू है, आगे कैलकुलेशन में देखेंगे, तो कपल का अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में उसको मार्क करना है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव. कपल अगर निगेटिव है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो कपल का डायरेक्शन हमें दिखाना है. कपल अगर निगेटिव वैल्यू का है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मार्क करना है. ये ध्यान में रखना है. फिर हमें अगला स्टेप करना है, कैलकुलेशन टेबल प्रिपेयर करना है. वी हैव टू प्रिपेयर टेबल इन दिस वे. फर्स्ट कॉलम इज अ प्लेन ऑफ रोटेशंस. द प्लेन ऑफ रोटेशंस आर प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी, प्लेन डी. These are the four planes of four rotating masses m1, m2, m3, m4. Plane A, plane B, plane C and plane D. Then दूसरा कॉलम है मास m in kg. तीसरा कॉलम है रेडियस r in मीटर, रेडिया ऑफ रोटेशन r that is in मीटर. Product of mass into radius is nothing but centrifugal force divided by omega square because angular velocity is same. All the four masses they are rotating on a same shaft. Therefore angular velocity is same. So centrifugal force divided by omega square. So force is obtained by product of mass into radius that is m into r. And mass is in kg and radius is in meter. So kg meter is the unit of the centrifugal force acting on these four masses. Then next column is distance from the reference plane that is L in meter. Reference plane से ये distance है L. Then mr into L is nothing but couple. Force into distance is called as a couple. So couple upon omega square that is mrl kg meter square. So for the calculation table we have to refer this diagram. So here there are two balancing masses, mass ml and mass mm. So we have to make one of the planes of rotation of balancing masses as a reference plane. तो यहाँ पे ml mass का जो plane of rotation है उसको हम reference plane करेंगे. तो plane of mass m1, this distance is on the left side of this reference plane, so it is taken as negative, and all other distances are positive because they are on the right side of this reference plane. रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में अगर डिस्टेंसेस है तो पॉजिटिव कंसीडर करना है. रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में एक ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन ए, एंड दैट इज इक्वल टू 40 mm. तो ये m1 और m2 में 80 mm डिस्टेंस था और ये प्लेन उसके मिडवे है, तो ये डिस्टेंस है 40 mm. तो ये 40 मतलब 0.04. तो ये माइनस लेना है यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ टेबल में हमें वो डिस्टेंस हमें माइनस लेना है. तो पहला प्लेन है हमारा ए, प्लेन ए. प्लेन ए पे मास m1 रोटेट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 20 kg. रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मास m1 इज 60 mm. So 0.06 meter, 0.06 meter. So 20 into 0.06 is the centrifugal force, that is mr, that is 1.2. Then distance of this plane A from the reference plane L, यहाँ पे अभी बताया मैंने, ये reference plane L है, यहाँ से ये distance है 40 mm. 40 मतलब 0.040 मीटर, और ये लेफ्ट में है इसलिए निगेटिव डिस्टेंस लिया हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये डिस्टेंस हमने निगेटिव लिया. सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन A from reference plane L is minus 0.04 meter. So product of force that is mr into L is nothing but couple. So 1.2 into minus 0.04, this is minus 0.048, and this couple is its unit is kg meter square, kg meter square, kg meter square. So this is the couple magnitude. Then reference plane L is the reference plane, and balancing masses, the balancing mass at plane L is ml, which magnitude we have to find out. And radius of rotation of these two balancing masses is 50 mm, so 0.05 meter. So radius of rotation is 0.05 meter. So this product of mass into radius, so ml into 0.05 is 0.05 into ml. So this is the centrifugal force, magnitude of centrifugal force acting on mass ml. The distance from the reference plane, reference plane यही reference plane है तो उसका distance 0 है. So this mr into L is 0, so this couple is 0. Couple is 0. Similarly, next is mass B or plane B. M2 का magnitude है 16 kg. Radius R2 is 0.07 meter. 16 into 0.07 is 1.12 kg meter force. Then distance of this plane B from the reference plane L is 0.04 meter.
सो वी कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लेन ऑफ मास से ये डिस्टेंस है 40 mm, ये भी डिस्टेंस 40 था, टोटल 80 है, M1 और M2 में 80 है, और ये प्लेन उसके मिडवे है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 40 है, तो 0.04, लेकिन ये डिस्टेंस राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है हमें कैलकुलेशन में, ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है. सो डिस्टेंस L फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, इट इज 0.04 मीटर एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रेफरेंस प्लेन L. तो 1.12 into 0.04, this comes out 0.045 kg meter square of couple. Then third plane is plane C. The mass M3 is 18 kg, radius is 0.08 meter. All these values are given. We have to write it in the tabular form. So 18 kg is the mass and radius R3 is 0.08 meter. So 18 into 0.08, this is the centrifugal force, that is MR 1.44. Distance from the reference plane of the plane C, we can see from the diagram. It is 0.120 meter. We have written in the calculation table how that distance comes 0.120 or 120 mm, that we can see. So here in the diagram we can see that distance between plane of mass M3 and plane of mass M1 is given 160 mm. ये distance 160 है M1 और M3 में. उसमें से अगर ये 40 mm है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रेफरेंस प्लेन का प्लेन ऑफ मास M1 से 40 mm है, तो 160 में से 40 माइनस करेंगे तो M3 distance of plane of mass M3 from the reference plane L is 120. So 120 mm. So in meter it is 0.120. तो ये डिस्टेंस है 0.120 मीटर, और ये राइट साइड में है इसलिए पॉजिटिव लिया है. तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस प्रोडक्ट वी हैव टू राइट इन द कपल कॉलम. सो कपल वैल्यू इज 0.173, 1.44 into 0.120, ये प्रोडक्ट इतना आ रहा है 0.173. Then next mass is balancing mass. Balancing mass M is in between plane C and plane D. Plane C और plane D के बीच में ये दूसरा मास है. तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे mass MM is placed between M3 and M4, midway between M3 and M4. Right? तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, रेफरेंस प्लेन से इस प्लेन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखिए. ये प्लेन ऑफ मास M1 से M3 का डिस्टेंस है 160. प्लेन ऑफ मास M1 से M4 का डिस्टेंस है 280 माइनस 160, तो ये डिस्टेंस M3 और M4 में डिस्टेंस है 120 mm, और ये मास उसके मिडवे है, ये प्लेन उसके मिडवे 120 के मिडवे है, तो ये 60 है, यहाँ से ये 60 है और ये 60 mm. तो ये यहाँ से रेफरेंस प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है हमें. यहाँ से प्लेन ऑफ मास M1 से ये 160 है, उसमें 60 और जोड़ देंगे तो ये 220 यहाँ तक हो गया. 220 में से ये डिस्टेंस 40 है, तो 220 माइनस 40 इज 180 mm. सो रेफरेंस प्लेन से इस प्लेन ऑफ मास MM का डिस्टेंस है 180 mm. ये थोड़ा कैलकुलेशंस करना है, बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे लेना है 180 mm, तो मीटर में होगा 0.180 मीटर. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इस प्लेन का मास है mm, ये हमें फाइंड आउट करना है. ml और mm दोनों फाइंड आउट करना है इस कैलकुलेशन में, दोनों अननोन है. राइट. रेडियस ऑफ रोटेशन उसका 0.05, 50 mm रेडियस है तो 0.05 मीटर है, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब फोर्स वैल्यू 0.05 इंटू mm. और डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन, ये डिस्टेंस अभी हमने देखा ये 180 mm है. रेफरेंस प्लेन से प्लेन ऑफ मास MM का डिस्टेंस है 180 mm, तो मीटर में लेना है हमें 0.180 मीटर. तो ये दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें. फोर्स का ये वैल्यू है 0.05 mm मल्टीप्लाइड बाय 0.180, तो ये आंसर आ रहा है, कपल आ रहा है 0.009 m इंटू mm, वेयर mm इज द मास ऑफ द अनदर बैलेंसिंग मास दैट इज mm. राइट. तो इस तरह से ये रो हमने कंप्लीट कर दिया. फिर लास्ट रो है प्लेन ऑफ मास M4, दैट इज डी प्लेन. M4 का वैल्यू है 14 kg, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है 70 mm, दैट इज 0.07 मीटर. दोनों का प्रोडक्ट लिया 14 इंटू 0.07, तो ये 0.98 kg मीटर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है. डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना है 240 mm है. तो ये यहाँ पे हमें डायग्राम से हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ पे देखिए ये प्लेन ऑफ मास M1 से M4 मास का डिस्टेंस है 280 में से ये 40 माइनस करना है, ये माइनस करना है. तो 280 माइनस 40 इज 240 mm. तो मीटर में कितना हो गया, मीटर में 0.240 मीटर हो गया. डिस्टेंस ऑफ द मास M4 फ्रॉम द प्लेन ऑफ मास M4 फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन दैट इज L इज 240 mm, दैट इज 0.240 मीटर. तो ये दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे कपल लिखना है. कपल का वैल्यू है 0.2350. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये टेबल, अगर देखेंगे हम टेबल देखेंगे तो टेबल में ये कपल का अगर कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे एक ही अननोन है.
तो पहले हमें कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ये ग्राफिकल मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो कपल के कॉलम में सिर्फ एक ही अननोन है, ये कपल ऑन मास m 0.009 इंटू mm, एक ही अननोन है। तो पहले कपल पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना है। दो पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, एक कपल पॉलीगॉन और दूसरा फोर्स पॉलीगॉन, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू डिस्टेंस l इज नथिंग बट कपल। कपल मीन्स मोमेंट, राइट। तो यहाँ पे कपल पॉलीगॉन पहले हमें ड्रॉ करना है डायग्राम में। और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ दो अननोन है, 0.05 ml, 0.05 ml एंड 0.05 mm। ये दो अननोन है, ml और mm। तो ये पहले हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमें कपल पॉलीगॉन ही पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है। तो पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा दैट इंडिकेट्स द कपल ऑन मास mm, ये कपल इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हमें अभी कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो कपल पॉलीगॉन के कॉलम में अगर देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 0.045 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। ये 0.045 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0.235। मिनिमम इज 0.045 एंड मैक्सिमम इज 0.235। ये दोनों वैल्यू कंसिडर करके हमें स्केल लेना होता है, स्केल लेना होता है। कपल पॉलीगॉन के लिए हमें स्केल लेना होता है। तो स्केल कैसे चूज करेंगे, ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं हमें, तभी जाके हमारा वो डायग्राम छोटा आएगा या बड़ा आएगा, उसके हिसाब से हमें स्केल चूज करना होगा। तो मिनिमम है 0.04 और मैक्सिमम है 0.2। तो हम स्केल चूज करेंगे, अप्रोप्रिएट स्केल चूज करेंगे। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्केल क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। मिनिमम 0.04 था वैल्यू, तो अगर 0.02 का स्केल लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल, तो इसके लिए मिनिमम के लिए ये 2 सेंटीमीटर का वेक्टर आएगा और मैक्सिमम के लिए 0.235 डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये जितना लेंथ आएगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो लेट मी कैलकुलेट दैट लेंथ ऑफ द वेक्टर फॉर दिस लार्ज वैल्यू। तो 11.7 सेंटीमीटर का ये लार्ज वेक्टर आएगा, 11.7। तो इसी हिसाब से हमने स्केल चूज किया, कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल चूज किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल वैल्यू। मतलब इसका मतलब ये होगा कि कपल पॉलीगॉन में 1 सेंटीमीटर लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, 0.02 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल इंडिकेट कर रहा है। तो अभी कपल पॉलीगॉन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने कंसिडर किया, ये रेफरेंस पॉइंट है O डैश। O डैश इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर द कपल पॉलीगॉन। पहला मास है M1 मास। M1 मास कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन है, FC1। तो कपल निगेटिव वैल्यू है, यहाँ इसमें देखिए ये निगेटिव वैल्यू है। कपल निगेटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसको मार्क करना है अलोंग द मास M1 मास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो हॉरिजॉन्टली ये O डैश पॉइंट से ये कपल का वेक्टर लेफ्ट साइड में जाएगा। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में है, तो कपल निगेटिव होने की वजह से ये हमें हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाना होगा, ये कपल का वेक्टर। तो O डैश A डैश इज द कपल वेक्टर। उसका लेंथ कितना आएगा, यहाँ हम देखेंगे लेंथ कितना आएगा 0.048 डिवाइडेड बाय 0.02। तो उसका लेंथ आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो O डैश टू A डैश ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में हमने एरो मार्क कर दिया, ये वेक्टर। क्यों कि ये निगेटिव वैल्यू है, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड है। तो कपल उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने वेक्टर लेंथ उसका है 2.4 सेंटीमीटर। 0.048 को 0.02 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर का ये वेक्टर आता है। तो यहाँ O डैश A डैश वेक्टर हमें 2.4 सेंटीमीटर मार्क करना है और डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और यहाँ पे वैल्यू लिखना है, ये कितना कपल इंडिकेट कर रहा है -0.048 kg मीटर स्क्वायर ऑफ कपल। ये हमें समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सर ये सेपरेटली करके बताओ, ये ग्राफिकल मेथड का प्रॉब्लम है, 2 घंटे लगेंगे एक सेपरेटली ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर। तो इसलिए ये सेपरेटली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे O डैश A डैश क्या है, कपल ऑन मास M1 और उसका मैग्नीट्यूड है -0.048। तो स्केल लेंथ के हिसाब से हमने ये O डैश टू A डैश वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मार्क कर दिया 2.4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा मास है M2। ये M2 मास कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो A डैश से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल करने वाला लाइन हमें निकालना है। और M2 मास पे जो कपल है, यहाँ देखिए ये M2 मास है, प्लेन B मतलब M2 मास का प्लेन है। तो इस पे कपल है 0.045, पॉजिटिव है ये कपल। पॉजिटिव मतलब क्या है, जो फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कपल वेक्टर हमें मार्क करना होगा। फोर्स का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से A डैश से हमें एंगल 60 डिग्री के लाइन पे ये वेक्टर मार्क करना होगा 0.045 डिवाइडेड बाय 0.02। 0.045 डिवाइडेड बाय 0.02
0.045 डिवाइड बाय 0.02, ये हमें वेक्टर का लेंथ हमें मार्क करना होगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे, क्योंकि सेकंड मास कितने एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे, तो ए डैश बी डैश ये जो वेक्टर है 60 डिग्री एंगल पे मार्क करना है वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, टेबल में देखिए, टेबल में इसका मैग्नीट्यूड है 0.045, उसको स्केल से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंथ आ रहा है, 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर का ये वेक्टर हमें ए डैश बी डैश मार्क करना है, एंड दिस इज द कपल ऑन मास बी और मास m2, कपल एक्टिंग ऑन मास m2, क्योंकि रेफरेंस प्लेन जो है उस पर कपल जीरो वैल्यू है, देखिए जीरो वैल्यू है, राइट। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, कपल ऑन मास m2। फिर कपल ऑन मास m3, ये कितना है, 0.173। मास m3 देखिए कितने एंगल पे, 135 डिग्री पे है, 135 हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है, 135 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ बी डैश से यहाँ राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस के लिए लेना है हमें, और यहाँ से 135 का एंगल मेजर करके एक लाइन खींचना है। ये उस कपल का या फोर्स का डायरेक्शन है, मास m3 पे जो कपल एक्ट हो रहा है इसे एंगल पे मार्क करना है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से 135 एंगल लेना है हमें ऐसे, और यहाँ कपल का वैल्यू पॉजिटिव है, देखिए 0.173, कपल ऑन मास 3 इज 0.173 एंड इट इज पॉजिटिव मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में कपल वेक्टर हमें मार्क करना होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, आउटवर्ड अलॉन्ग द प्लेन ऑफ मास m3, या आउटवर्ड है ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हमें ये वेक्टर मार्क करना होगा, ये वेक्टर मार्क करना होगा। तो वेक्टर बी डैश सी डैश कैसे मार्क करेंगे, 0.173 डिवाइडेड बाय स्केल। तो ये डिस्टेंस कितना आता है, देखिए 0.173 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये डिस्टेंस आता है 8.6। तो ये 135 डिग्री पे ये बी डैश सी डैश वेक्टर हमें मार्क करना है 8.6 सेंटीमीटर, इस 135 डिग्री के लाइन पे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ये 135 एंगल मेजर करना है। इस प्लेन पे m3 मास है, तो कपल फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कपल रहेगा। कपल का मैग्नीट्यूड है 0.173 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये डिस्टेंस आता है 8.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने ये 8.6 सेंटीमीटर का ये बी डैश सी डैश वेक्टर मार्क कर दिया। तो यहाँ पे ये डायग्राम कपल पॉलीगॉन का कोई थोड़ा पोर्शन ये कैलकुलेशन टेबल में जा रहा है, तो आपको सीट पे ये ड्रॉ करेंगे तो केयर लेना है कि ये टेबल में मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिमिटेड है, इसलिए ये बी डैश सी डैश वेक्टर 8.6 सेंटीमीटर का हमने मार्क कर दिया, एंड दिस इंडिकेट्स द कपल ऑन मास m3, कपल ऑन मास m3, और इस डायरेक्शन में। फिर m4 मास कितने एंगल पे है, देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये एंगल है 270 डिग्री का m4 का। तो m4 मास मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ d है, तो उस पर कपल कितना है, 0.235, सबसे ज्यादा कपल है, और पॉजिटिव मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मास m4 पे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो उसी डायरेक्शन में हमें कपल वेक्टर मार्क करना होगा। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ से सी डैश डी डैश हमें ये वेक्टर का लेंथ मार्क करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है हम देखेंगे। लेंथ वेक्टर का लेंथ कितना आता है, देखेंगे 11.7 सेंटीमीटर। तो ये सी डैश टू डी डैश ये जो वेक्टर है वो ये सी डैश टू डी डैश वेक्टर है, ये 11.7 सेंटीमीटर आ रहा है, 11.7 सेंटीमीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा 0.235 कपल, एंड दिस इज कपल ऑन मास m4, तो डी डैश तक आ गए हम। यहाँ पे डी डैश टू ओ डैश ज्वाइन करना है हमें। क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, कपल पॉलीगॉन, क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन इंडिकेट्स दिस अननोन कपल। ये कपल हमें मालूम नहीं था। ये क्लोजिंग साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कपल ऑन मास mm, तो डी डैश टू ओ डैश हमें ज्वाइन करना है, और उसका एरो हमें ओ डैश की तरफ दिखाना है। क्लोजिंग साइड है ये पॉलीगॉन का। क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन इंडिकेट्स द कपल ऑन मास mm। ओ डैश टू डी डैश ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कपल ऑन मास mm। तो लेंथ ऑफ वेक्टर ओ डैश टू डी डैश मल्टीप्लाइड बाय स्केल इज इक्वल टू कपल एक्टिंग ऑन मास बैलेंसिंग मास m। इस ओ डैश डी डैश वेक्टर का लेंथ हमने मेजर किया, 8.6 सेंटीमीटर आया, और हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02, तो उसको स्केल से मल्टीप्लाई किया। 8.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.02 स्केल है, इज इक्वल टू कितना कपल है, ये कपल है 0.009 इंटू mm, इक्वल टू 0.009 इंटू mm। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मास ऑफ बैलेंसिंग मास ऑफ mm, और वो कितना आएगा 8.6 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.009, तो ये आ रहा है 19.11 kg। तो ये पहला बैलेंसिंग मास हमें मिल गया, राइट। mm इज द बैलेंसिंग मास मैग्नीट्यूड 19.11 kg, इतना बैलेंसिंग मास mm मास होगा। और उसका एंगुलर पोजीशंस,
एंगुलर पोजीशन, तो ये वेक्टर ऊपर के साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे ओ डैश पॉइंट से ये ऊपर के डायरेक्शन में ये एंगुलर पोजीशन है, तो ये एंगल हमें मेजर करना है, ये एंगल है 25 डिग्री, ये एंगल है 25 डिग्री, ये एंगल मेजर करना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल हमें मेजर करना है, यह है 25 डिग्री। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मास m दैट इज थीटा m फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन इज 25 डिग्री। 25 डिग्री पे ये एंगुलर पोजीशन है मास m का। तो यहाँ पे हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ मासेस में यहाँ पे प्लेन ऑफ मास से ये एंगल मेजर करना है 25 डिग्री, ये एंगल मेजर करना है 25 डिग्री और यहाँ पोजीशन मार्क करना है। दिस इज द पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ मास mm एंड इट्स मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ 11.11 kg। इतना मास मिल गया कपल पॉलीगॉन से, हमें ये मास mm मिल गया और थीटा m मिल गया, ये दो पैरामीटर मिल गए कपल पॉलीगॉन से। फिर हमें फोर्स पॉलीगॉन से ml और थीटा l फाइंड आउट करना है। ये पहला पार्ट हो गया, कपल पॉलीगॉन हो गया। फिर अभी हमें दूसरा पार्ट करना है, दैट इज फोर्स पॉलीगॉन। तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे टेबल में देखना होगा, यहाँ पे mm मास हमें मिल गया है। फोर्स ऑन मास m इज 0.05 इंटू mm का वैल्यू मिल गया हमें 19.11। ये वैल्यू यहाँ पे 19.11 वैल्यू पुट करके हमें ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास m इज इक्वल टू FCM इज इक्वल टू 0.05 इंटू mm का वैल्यू पुट कर दिया हमने 19.11। सो 0.05 FCM इज इक्वल टू 0.05 इंटू 19.11, राइट। तो ये फोर्स आ रहा है 0.955 kg मीटर। तो ये फोर्स हमें मिल गया यहाँ पे, ये फोर्स का वैल्यू हमें मिल गया। ये कितना आ रहा है 0.955, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, राइट। तो ये कैलकुलेट कर दिया। तो अभी एक ही अननोन बचा हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉलम में, एक ही अननोन बचा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास ml, दैट इज 0.05 इंटू ml। सो क्लोजिंग साइड ऑफ दिस फोर्स पॉलीगॉन गिव्स अस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन का जो क्लोजिंग साइड होगा तो ये फोर्स इंडिकेट करेगा। तो अभी हम फोर्स पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, फोर्स पॉलीगॉन हम कंप्लीट करेंगे। तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए ये वैल्यूज देखने हमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के वैल्यूज देखने। मिनिमम वैल्यू है 1.12, सॉरी 0.98 is the minimum value. 0.98 is the minimum value and maximum value is 1.44. Minimum is 0.98 and maximum is 1.44. तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू कंसिडर करके फोर्स पॉलीगॉन का हमें स्केल चूज करना है। मिनिमम वैल्यू है 0.98, सॉरी इधर है फोर्स का वैल्यू FCM 0.955 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम कितना है 1.44 ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके हिसाब से हमें स्केल चूज करना होगा। तो हम स्केल चूज करेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 kg मीटर, 0.3 kg मीटर ऑफ फोर्स, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0.9 है समझो, तो ये 3 सेंटीमीटर का वेक्टर आएगा। मिनिमम वेक्टर विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1.44। तो 1.44 डिवाइडेड बाय 0.3 कितना होता है देखेंगे, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.3। तो मैक्सिमम वेक्टर लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 4.8 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 4.8 सेंटीमीटर आएगा इस फोर्स पॉलीगॉन में, राइट। मिनिमम 3 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 4.8 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है। हमारा डायग्राम ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कपल पॉलीगॉन के लिए हमने छोटा स्केल लिया था तो डायग्राम बड़ा हो गया। यहाँ पे कन्वीनियंट स्केल हमने लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3 kg मीटर ऑफ फोर्स। तो अभी फोर्स पॉलीगॉन यहाँ से स्टार्ट करना है। ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। तो पहला फोर्स है FC1, ये हॉरिजॉन्टल मास है M1, इस पे FC1 है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का है यहाँ पे देखेंगे हम, ये 1.2 का है, 1.2 का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से OA वेक्टर हॉरिजॉन्टली राइट साइड में मार्क करना है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.2 kg मीटर ऑफ फोर्स, 1.2 kg मीटर ऑफ फोर्स। फिर O2A इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास M1 एंड दैट इज 1.2 kg मीटर फोर्स। सो 1.2 डिवाइड बाय 0.3, तो ये कितना आएगा, ये 4 सेंटीमीटर का आएगा। OA वेक्टर 4 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टली राइट साइड में मार्क करना है। फिर A पॉइंट से ये एंगल प्लेन ऑफ मास M2, एंगुलर पोजीशन कितना है मास 2 का 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल मेजर करना है 60 डिग्री। तो AB वेक्टर 60 डिग्री पे मार्क करना है क्योंकि मास M2 60 डिग्री पे है। एंगुलर पोजीशन देखिए, मास M2 इज एट 60 डिग्री, सो FC2 इज अलोंग द मास M2, राइट, और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मास M2 का अगर फोर्स का वैल्यू देखेंगे कितना है 1.12, ये मास M2 का फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है।
1.12 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये कितना आएगा 1.12 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये 3.7 सेंटीमीटर आ रहा है ये वेक्टर। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पॉलीगॉन में ए बी वेक्टर, ये एंगल कितना है 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, और इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा है टेबल से 1.12 है, 1.12, तो उसको डिवाइड बाय 0.3 करेंगे तो 3.7 सेंटीमीटर आता है ये वेक्टर का लेंथ। तो ए बी इज ऑफ 3.7 सेंटीमीटर एंड इट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास m2, 1.12, ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास m2, दैट इज FC2, राइट। फिर बी पॉइंट से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करना है। तीसरा मास का एंगल है 135 डिग्री, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन में देखिए, तीसरे मास का ये मास m3 है, उसका फोर्स ये है FC3, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बी पॉइंट से हमें ये एंगल मेजर करना है 135 डिग्री, ये एंगल मेजर करना है 135 डिग्री, ये एंगल हमें मेजर करना है 135 डिग्री, राइट। तो यहाँ से बी पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 135 डिग्री का एंगल करके एक लाइन खींचना है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC3। तो इस एंगल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मास ऑन मास m3 का मैग्नीट्यूड कितना है 1.44 है, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.3 हमारा स्केल है, तो 1.44 डिवाइडेड बाय 0.3 ये आता है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से B to C डिस्टेंस कितना लेना है हमें 4.8 सेंटीमीटर। B to C डिस्टेंस हमें लेना है 4.8 सेंटीमीटर एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑन मास m3 दैट इज 1.44 एज पर इन द टेबल में देखिए फोर्स ऑन मास m3 इज 1.44। तो 4.8 सेंटीमीटर का BC ये वेक्टर हमने मार्क कर दिया और ये 135 डिग्री पे है। ये समझना है, ग्राफिकल मेथड है, ये समझना है। BC is of 4.8 centimeter long and it is at 135 degree. Then mass m4 is vertically downward and its angle is 270 degree. 270 डिग्री एंगल है इस प्लेन ऑफ मास m1 से, एंगल है 270 डिग्री। तो यहाँ से इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, FC4 इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो CD वेक्टर हमें कितने लेंथ का मार्क करना है वो यहाँ हमें मिलेगा 0.98 डिवाइडेड बाय 0.3, 0.98 डिवाइडेड बाय 0.3, 0.98 डिवाइडेड बाय 0.3, तो इसका लेंथ आता है 3.2 सेंटीमीटर। तो CD वेक्टर हमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करना है 3.2 सेंटीमीटर का वर्टिकली डाउनवर्ड मार्क किया हमने, राइट। तो D पॉइंट मिल गया। अभी हमें फोर्स ऑन मास M हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे फोर्स ऑन मास M इज 0.955 kgm। तो मास M का पोजीशन ये है, M का पोजीशन ये है कितने डिग्री पे 25 डिग्री से, यहाँ से 25 डिग्री पे। तो FCM जो फोर्स होगा, FCM फोर्स विल बी लाइक दिस, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ये 25 डिग्री पे। तो हमें क्या करना है, ये D पॉइंट से यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है रेफरेंस के लिए, और यहाँ से ये एंगल 25 डिग्री मेजर करना है, ये एंगल 25 डिग्री मेजर करके ये वेक्टर DE मार्क करना है। वेक्टर DE का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 0.955 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे, 0.95 डिवाइडेड बाय 0.3, तो उसका लेंथ हमें मिल जाएगा वेक्टर का, DE वेक्टर का लेंथ मिल जाएगा, ये 3.1 सेंटीमीटर आ रहा है। D to E ये वेक्टर ये 25 डिग्री पे है, ये एंगल 25 डिग्री है, ध्यान में रखो 25 डिग्री है, राइट। ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, FCM कैसा है, ऐसा है 25 डिग्री पे, ऐसा रेडियली आउटवर्ड। तो उसी डायरेक्शन में फोर्स मार्क कर दिया और उसका लेंथ आया, वेक्टर का लेंथ आया, D to E का लेंथ आ गया 3.1 सेंटीमीटर। तो डॉटेड क्यों दिखाया कि मास हमने mm फाइंड आउट करके ये फोर्स फाइंड आउट किया था, इसलिए डॉटेड दिखाया यहाँ, इसलिए डॉटेड दिखाया, राइट। 3.1 सेंटीमीटर DE वेक्टर और ये एंगल 25 डिग्री पे ये बैलेंसिंग फोर्स FCM हमने मार्क कर दिया, उसका मैग्नीट्यूड है 0.95 kgm। अभी E to O ये क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग वेक्टर है, E to O ये क्लोजिंग वेक्टर है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस क्लोजिंग साइड O to E indicates the centrifugal force on mass ml। O to E वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ टेबल में देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास ml। मास ml पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इंडिकेट कर रहा है 0.05 ml का। तो O to E ये क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, फोर्स पॉलीगॉन इंडिकेट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन मास ml। पूरा लॉजिकल है ये। So length of vector O to E multiplied by scale is equal to centrifugal force on mass ml। So length of vector OE कितना मेजरमेंट के बाद आ रहा है 7.1 सेंटीमीटर, उसको स्केल से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 हमारा स्केल था, मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड दैट इज इक्वल टू कितना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड
0.05 into ml. So 7.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्केल इज 0.3 इज इक्वल टू 0.05 ml. तो यहाँ पे ml का वैल्यू मिल गया, मास ऑफ फर्स्ट बैलेंसिंग मास दैट इज ml. ये मिल गया हमें 42.6 kg. ये आंसर है हमारा, यह दूसरा आंसर है 42.6 kg. दिस इज द सेकेंड आंसर इन द प्रॉब्लम, सेकेंड आंसर इन द प्रॉब्लम. और इस ई पॉइंट से यहाँ राइट साइड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन करना है और ये एंगल मेजर करना है हमें, रेड कलर से दिखाया हमें, थीटा एल. ये कितना है 180 यहाँ तक है, उसमें ये 31 डिग्री एक्स्ट्रा, 180 प्लस 221 है तो 180 31 डिग्री, राइट. 180 प्लस 220 माइनस 221 माइनस 180, ये करेंगे तो एंगल कितना होगा 41 डिग्री, 41 डिग्री. तो ये 41 डिग्री का ये एंगल हमें मेजर करना है, 41 डिग्री का, राइट. 41 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक 180 है और ये 41, तो 221 टोटल एंगल हो गया. थीटा एल मिल गया हमें. जो ml मास है उसका मैग्नीट्यूड है 42.6 kg एंड उसका एंगुलर पोजीशन है थीटा एल इज इक्वल टू 221 डिग्री विद द प्लेन ऑफ मास m1. मास m1 से इसका एंगल कितना है 221 डिग्री. तो यहाँ पे भी दिखाया ये, यहाँ से ये 221 डिग्री एंगल मेजर किया और ये मास ml दिखाया यहाँ पे, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास ml. एंड इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज rl, इसका rm है, राइट. तो इस तरह से हमने ये ml फाइंड आउट किया 42.6 kg एंड थीटा एल आ गया 221 डिग्री. तो दोनों बैलेंसिंग मासेस के मैग्नीट्यूड्स हमें मिल गए. ml इज इक्वल टू 42.6 kg एंड थीटा एल इज इक्वल टू 221 डिग्री. 221 डिग्री पे ये ml मास हमें प्लेस करना है, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन है उसका. और दूसरा बैलेंसिंग मास है 19.11 kg एंड उसका एंगल है 25 डिग्री, 25 डिग्री. तो दूसरा मास ये mm मास है, इसका एंगुलर पोजीशन है 25 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मास m1 से ये 25 डिग्री पे दूसरा मास है mm. और ml 221 डिग्री पे ये ml मास है और उसका मैग्नीट्यूड है 42.6 kg. यही दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे. लास्ट प्रॉब्लम का सेंटेंस देखिए, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द बैलेंसिंग मासेस. दो बैलेंसिंग मासेस थे ml और mm, तो दोनों के हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए. ml इक्वल टू 42.6 kg, थीटा एल इज इक्वल टू 221 डिग्री एंड mm इज इक्वल टू 19.11 kg एंड थीटा m इज इक्वल टू 25 kg. इस तरह से ये 10 मार्क्स का प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है. ग्राफिकल मेथड से थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा, कैलकुलेशन टेबल समझना होगा, कपल पॉलीगॉन हमें अच्छे से ड्रॉ करना होगा. दो पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं. कपल पॉलीगॉन से हमें mm मास मिल गया और थीटा m मिल गया, और फोर्स पॉलीगॉन से हमें ml मास मिल गया और थीटा उसका एंगुलर पोजीशन मिल गया. तो कपल पॉलीगॉन के लिए स्केल चूज करना है, फोर्स पॉलीगॉन के लिए स्केल चूज करना है. कपल अगर निगेटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है. कपल अगर पॉजिटिव है तो फोर्स के डायरेक्शन में ही वो कपल वेक्टर मार्क करना है. इतना ध्यान में रखना है. बाकी ये प्रॉब्लम आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा. 10 मार्क के लिए प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो, बाकी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. सो थैंक यू. See you in the next lecture on another important problem on the balancing masses, balancing of rotating masses. Thank you.